हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतनकर, योर मास्टर टीचर here at Vedantu. In today's lecture, we will be discussing question number third and fourth of year 2006. Both of these questions are very easy. One question is from permutation and combination, and the other one is from inequalities, right? So we will be in fact studying a theorem of inequality also, right? So before starting the session, let me tell you just one information that फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से हमारा प्री आरएमओ का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, राइट? जिसमें हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको पूरा प्री आरएमओ का सिलेबस करवाएंगे, राइट? एंड अगेन इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ ये गूगल फॉर्म फिलअप करना है, तो काइंडली विजिट ऑन vdnt.in/vosmaths2। इस गूगल फॉर्म को फिलअप करो, हमारा कंसर्न पर्सन आपको कॉल करेगा एंड आपकी हेल्प करेगा इस बैच में एनरोल करने के लिए, राइट? And the fees for this batch is nothing. Yeah, the batch is completely free of course. All you need to do is just fill up this Google form, right? So let's start the session. As you can see, this is third question of 2006 and it is from inequality. The question says that if ABC are three positive real numbers, then we need to prove that a square plus 1 upon b plus c plus b square plus 1 upon c plus a plus c square plus 1 upon a plus b that will be greater than or equal to 3. ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने से पहले हम एक सिंपल सा कंसेप्ट देखते हैं। इसको बेसिकली टीटूज लेमा भी बोलते हैं। कंसेप्ट क्या है? ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर्ड अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, दिस इज वैलिड इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। एक्स और वाई पॉजिटिव होने चाहिए, ए और बी नेगेटिव भी होंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ए और बी कुछ भी हो, बट यस एक्स और वाई मस्ट बी पॉजिटिव। एंड ये रिजल्ट प्रूव करना बहुत सिंपल है, जस्ट टेक द एलसीएम है ना। यहाँ पर क्या बनेगा? ए स्क्वायर वाई एंड ऑल्सो क्रॉस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई। सिंस एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं ना, तो दैट विल बी एक्स प्लस वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स टाइम्स एक्स प्लस वाई दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये अब हमें प्रूव करना है। इनइक्वालिटी ये है इनफैक्ट। ठीक है, that should be equal to a plus b whole square, which is nothing but a square plus b square plus 2ab times this thing x into y, right? And just open up the bracket, so what we will get, a square x y plus a square y squared, similarly plus b square x square plus b square x y that should be greater than or equal to a square x y plus b square x y plus 2ab x y. Now as you can see, a square xy that gets cancelled out with this, b square xy that's cancelled out with this, and what we are left with, let's take this on the left hand side. So we will get ay minus bx whole squared is greater than or equal to 0, and this is a fact, this is always true. This is always true. Now you can backtrack the steps and we can say that a square upon x plus b square upon y that will be greater than or equal to a plus b whole squared upon x plus y, and obviously for x, if x and y are positive. Why we are doing this? Because we have cross multiplied by xy and x plus y, right? So both of these quantity has to be positive, right? So okay, now let's see how we will apply this particular theorem. अच्छा, इसको है ना अब हम फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब we can also say a square upon x plus b square upon y plus c square upon z, और जितने मर्जी टर्म्स हो that will be greater than or equal to a plus b plus c whole squared upon x plus y plus z. एंड ट्रस्ट मी, ये इनइक्वालिटी के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो अगर आप आरएमओ के इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो एट टाइम्स आपको काफी सारे क्वेश्चंस में ये थ्योरम यूज होगी, राइट? एंड बहुत सिंपल सा थ्योरम है, राइट? देखते हैं हम इसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा अलग अलग करते हैं। वी कैन राइट इट एज ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी। सिमिलरली यहाँ से बी स्क्वायर का टर्म उठाते हैं, यहाँ से सी स्क्वायर का, दैट विल बिकम बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए, एंड फर्दर दैट विल बिकम सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, है ना? ये तीन टर्म्स प्लस जो हमारा बच गया उसको अब लिखते हैं 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी। अब हमें प्रूव करना है कि दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। देखते हैं। अच्छा, 1 को वी कैन ऑल्सो राइट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, एक ही बात है, राइट? अब इतने से पार्ट में अगर मैं प्रीवियस थ्योरम लगाता हूँ तो आई कैन से दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a plus b plus c whole squared upon twice of a plus b plus c, and obviously 1 a plus b plus c will get cancelled out, plus इस पे मैं फिर से वो वाली थ्योरम लगाता हूँ इनइक्वालिटी वाली जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी। तो 1 plus 1 plus 1 3 3 squared
9 अपॉन फिर से ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अब ये चीज हमारे पास आ गई। अब अगर मैं प्रूव कर देता हूँ कि ये वाली चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज ये वाला पार्ट इससे बड़ा है, इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और अगर मैं फर्दर ये प्रूव कर पाता हूँ कि ये वाली चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो कंसिडर दिस पार्ट a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 2 a प्लस बी प्लस सी, और क्लियरली ये तो दिख ही रहा है यहाँ पे, तो am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm लग जाएगा, है ना। तो दिस प्लस दिस दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो दैट विल बी 9 अपॉन 4। so that is in fact that is what this is, 9 upon 4 is 3 by 2 and this is clearly 3. We can say that this thing is greater than or equal to 3 and which is what we need to prove. ठीक है, clear? तो again ये वाली इनइक्वालिटी यूज कर गया ना, बहुत सिंपल हो गया। तो प्लीज 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 डू रिमेंबर दिस इनइक्वालिटी अगर आप इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहते हो आसानी से। काफी क्वेश्चंस में आपको ये इनइक्वालिटी यूज होती हुई दिख जाएगी, राइट। दिस इज नॉन एज टीटूज लेमा। टीटू एंड्रेस्क्यू बेसिकली यूएस के काफी अच्छे मैथमेटिशियन है ना, उन्होंने ये इनइक्वालिटी दी थी, राइट। चलो, तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is somehow मतलब related to a mixed question of number theory and combinatorics, although कुछ खास इसमें यूज नहीं होगा ना, सिंपल सा कंसेप्ट है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। A 6 by 6 square is dissected into 9 rectangles by lines parallel to its sides such that all these rectangles have integer sides, है ना। Prove that there are always two congruent rectangles। ठीक है, पहली बात तो देखो इसमें ना ये नहीं बताया गया कि लाइंस किस तरीके से हमने ड्रॉ की गई है, पैरेलल है, बट हाँ रेक्टेंगल कैसे बन रहे वो नहीं बताया हुआ। जैसे लेट से मतलब एक 6 by 6 का स्क्वायर है, एक तरीका है 9 रेक्टेंगल्स में ब्रेक करने का, दो लाइंस ऐसे लगाई, दो कुछ ऐसे लगाई। ठीक है, हम 9 रेक्टेंगल्स में इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, या फिर क्वाइट पॉसिबल ऐसे भी किया जा सकता है, मे बी कुछ कुछ लाइंस ऐसे लगा दी एंड देन कुछ ऐसे लगा दी। ठीक है, देन कुछ ऐसे लगा दी, कितने बन गए 1 2 3 4 5 एंड लेट्स से 6 7 एंड देन 8 9, कुछ इस टाइप की भी फिगर हो सकती है मे बी। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंड लाइंस मस्ट बी पैरेलल टू साइड्स, तो प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो इन सारे सिनेरियोज में वी नीड टू प्रूव ये जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं ना, कंडीशन क्या है, दे मस्ट हैव इंटीजर साइड्स, इंटीग्रल उनकी साइड होनी चाहिए। एंड अगर हम 9 रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं पूरे 6 by 6 के स्क्वायर को, तो वी कैन डेफिनेटली फाइंड टू कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स। ठीक है, एंड कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स का मतलब होता है दे शुड बी ओवरलैपेबल, हो सकता है रोटेशन के बाद हो, मतलब क्वाइट पॉसिबल जैसे इस फिगर में ये वाला और ये वाला रेक्टेंगल हो सकता है कॉन्ग्रुएंट हो, राइट। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, है ना। तो देखते हैं एक बार इसको कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, since biggest hint is all the rectangles must be of integer sides and obviously every square is also a rectangle, है ना। तो हम integer sides वाले नॉन कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल लिस्ट डाउन करने की कोशिश करते हैं कितने हो सकते हैं, राइट। तो देखो सबसे छोटा रेक्टेंगल होगा 1 by 1 का, उसका एरिया होगा 1, राइट। फिर 1 by 2 का 1 by 1 का हो सकता है, फिर 1 by 2 का हो सकता है, उसका एरिया होगा ऑब्वियसली 2। फिर क्या हो सकता है 1 by 3 का भी हो सकता है, तो उसका एरिया विल बी 3। 2 by 2 का हो सकता है, उसका एरिया विल बी 4, है ना। 4 एरिया का एक और रेक्टेंगल हो सकता था 1 by 4, ये दोनों क्लियरली नॉन कॉन्ग्रुएंट है। 5 एरिया का यस वी कैन हैव 1 by 5। 6 एरिया वाला रेक्टेंगल यस वी कैन हैव 1 by 6 बिकॉज 6 by 6 का स्क्वायर है, और 6 एरिया वाला व्हाट वी कैन हैव 2 by 3, है ना, ये भी 6 एरिया देगा। 7 एरिया का वी कैनॉट हैव एनी रेक्टेंगल बिकॉज 7 is a prime number and 1 into 7 is the only possible two factors, but since 6 by 6 is a square, मतलब the maximum side is of 6 units, है ना, the maximum length possible, so 1 by 7 is not possible। Now let's consider 8। 1 by 8 is not possible, but yes 2 by 4 is possible, right। Similarly 9 area wala is 3 by 3, this is the only possibility। अच्छा, how many rectangles we have formed till now? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, okay 10 rectangles हमने बना दिए, but I don't think we will require this many rectangles because we need only 9 rectangles। no, so this is extra, ठीक है, we do not require this rectangle। So these are the 9
non-congruent triangles, rectangles, right? Which have basically any two of them will not overlap completely with each other. So practically these are the 9 non-congruent rectangles. Okay, let's find the total area that we can form from this. That will be 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 4 plus 5 and then plus 6 plus 6 plus 8. This is the sum of the areas. And can we calculate this sum? That will be 3 3 6 4 10 5 15 4 19 6 25 6 31 plus 8 39. So this is 39 in area. तो अब मतलब क्या है, हमने 9 नॉन कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स बनाए लीस्ट एरिया वाले, ठीक है, और वो एरिया भी हमने कैलकुलेट किया, टोटल एरिया 39 बनता है, बट हमारे पास कितना अवेलेबल था, 6 by 6 का स्क्वायर था, दैट मीन्स वी हैव 36 स्क्वायर यूनिट्स अवेलेबल, ठीक है। एंड अगर हम 9 नॉन कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स में ब्रेक करते हैं तो एटलीस्ट वी विल रिक्वायर 39 एरिया, है ना, ये चीज एग्जीक्यूट करने के लिए। इसका मतलब कम से कम 2 कॉन्ग्रुएंट रहे होंगे तभी 6 by 6 के स्क्वायर को हम 9 रेक्टेंगल्स में डाइसेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो क्या 9 नॉन कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर सकते हैं, हम इसे डाइसेक्ट कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज इन दैट केस वी विल बी नीडिंग 39 एज द लीस्ट एरिया, right? But we have 36 area available, so we will not be able to do such dissection. That means there must be 2 congruent rectangles, at least 2 congruent rectangles जरूर होंगे, right? Clear? चलो, so that's it from today's session, guys. Today we have discussed question number 3rd and 4th of year 2006, and in the next lecture we will be discussing the last 3 questions of year 2006. And again, मतलब अभी अगस्त फर्स्ट वीक से यार वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू प्री आरएमओ बैच। तो अगर आप लोग प्री आरएमओ की तैयारी करना चाहते हो एंड क्योंकि प्री आरएमओ के ऑल्दो अभी पेपर की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट यस बड़ी जल्दी नोटिफिकेशन आने वाली होगी, एंड आई एम वेरी श्योर एग्जाम के लिए आपको एटलीस्ट 2.5 मंथ्स का टाइम जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो इफ यू वांट टू यूटिलाइज दिस टाइम, काइंडली फिल अप दिस गूगल फॉर्म, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेंगे एंड दे विल हेल्प यू to enroll in this pre-RMO batch that is starting from the August first week, right? And this batch is basically completely free of cost. You do not need to pay even a single penny to enroll in this batch, right? So we'll meet you in the next session. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.